क्या आप मुझे सुन सकते हैं? गुड इवनिंग टू एवरीवन. Please write in the chat box. Hello everyone. Good evening. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? That's good. So hopefully everyone is doing good. I know that number of cases in COVID and all this stuff is increasing everywhere. So please take care of yourself and take care of your relatives, family. Okay, so yes, we will start about today's lecture in mathematics. So I will just share the screen. Okay. So can you see my screen? Please let me know whenever you see my screen. So today, I think we have finished about today we have finished about the expansion formulas. Let's go and learn more about. Oh, sorry. I think there is some issue with my bed. Okay, we will figure it out. It will take 1 minute. Okay, so can you see my screen now? Yes, that's great. So we have learned about the expansion formulas. There is another chapter, 6.1. I will park it for time being, and we will come back here again, factorization of algebraic expressions. We will start with variation. Variation is nothing but change. So there is nothing constant. There is uh, famous one sentence is there. Nothing is constant in the world. So everything changes, right? So variation. So we have to look into like what is meant by variation. So we'll start with variation. Variation is nothing but change. So वेरिएशन का मतलब होता है जो आप मतलब जो भी चीजें बदलती रहती है, उनका फॉर्म हो या उनका शेप हो या टाइम टाइम के अनुसार हर चीज चेंज होती रहती है. सो दैट इज द मेन थिंग. आप कुछ भी चीज ले लीजिए, आपका एज, आपका मतलब आपके घर में अगर कोई चीज रखी है, जैसे वाटर रखा है एक पॉट में, तो वो भी धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहता है. सो दिस इज द वेरिएशन. सो दिस चेंज, ये बदल हमेशा होते रहता है. सो लेट्स सी वेदर वी कैन कोरिलेट, और हम इनका कुछ रिलेशन बना सकते हैं क्या. जैसे अभी वाटर रखा हुआ है एक पतीले में, तो उस वेसल में से अगर वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो वो कौन से रेट से हो रहा है, या मतलब उसका क्या रेट है, या मतलब आपके यहाँ टेम्परेचर एक्स है, तो उसका कितना इवेपोरेट होता है. अगर आप थोड़े से मतलब समर में, अभी तो विंटर चालू है, ठंडी का मौसम, तो तभी
मतलब इवेपोरेशन का रेट क्या है और समर में कितने फास्ट वो इवेपोरेट होता है। तो ये भी एक छोटा सा चीज है, मतलब छोटी सी चीज है जो वेरी हो रही है, वेरिएशन मतलब उसका बदल हो रहा है, तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ सीखेंगे, but there are like many complicated relations. We are not going into that. We are just starting, like we are in 8th standard, right? So for 8th standard we will learn some basic fundamentals, and this will be useful for you in future. Like I told you, it's simple relation, uh, like water evaporation, वाटर कैसे इवेपोरेट हो रहा है ठंडी के मौसम में या गर्मी के मौसम में, तो हम इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स होता है, लेकिन उसके पहले हम जान ले कि सिंपल वेरिएशन क्या होता है। तो हम लोग अभी देखते हैं, जैसे यहाँ देखेंगे, इफ रेट ऑफ बुक नोटबुक्स इज ₹240 per dozen, okay, what is the cost of 3 books? ओके, सो उन्होंने कहा है कि 240 पर डजन, तो यहाँ ₹240 एक डजन के। एक डजन मतलब कितने होते हैं? 12। ओके, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स? सो यहाँ क्या आंसर आएगा? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? सो किसी ने 9 लिखा है, वेदर इट इज 9? सो एक डजन मतलब 12 नोटबुक्स की प्राइस है ₹240। सो 3 नोटबुक की प्राइस क्या होनी चाहिए? What will be the price for 3 notebooks? Can you write in the chat box? Some students are writing 9, 60, 80. So let's see. हमें तो पता ही है, जैसे 240 हम क्या करते हैं, 240 डिवाइड बाय 12। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हर एक uh, हर एक नोटबुक की प्राइस पता चलेगी इससे, राइट? आगे तो हमें क्या करना है अभी, एक नोटबुक की प्राइस है 20, तो 3 नोटबुक की कितनी होगी? 60। ओके, सिमिलरली फॉर 9 it will be, what will be the price for 9 notebooks? Can you write in the chat box please? 180, that's correct. I will go a bit quick. Whoever gives answer, I will write it down here. So number of notebooks 24, then cost, what will be the cost in rupees? So it will be 480, 480 होगी। 50 नोटबुक की प्राइस 1000, दैट्स करेक्ट। सो अब देख सकते हैं, जैसे यहाँ दो चीज है जो वेरी हो रही है और उनका हमें कोरिलेशन पता करना है। सो एक है x और दूसरी है y। ओके, सो x और y का रिलेशंस हमें यहाँ पता करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो अगर लेंगे हम, ओके, सो x divided by y, so what is that? That is always 1/20 या y by x, जो भी है। अगर ये हम देखेंगे
तो इनका जो चेंज हो रहा है, जैसे x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, राइट। सो अगर देखेंगे तो इनका वेरिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, तो वो क्या है 1/20, इट इज कांस्टेंट, राइट। सो नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड देयर कॉस्ट आर इन द सेम प्रोपोर्शंस। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में हैं। जैसे कि x बढ़ेगा, if x increases y also increases. Okay, so let's go to the next thing. So अभी हम ने देखा कि कैसे x दो चीजें हैं, x और y। सो x भी वैरी हो रहा है और y भी वैरी हो रहा है, जैसे नंबर ऑफ नोटबुक्स इन कॉस्ट इन रुपीज। सो यही चीज होती है कि हम दो चीजों का कोरिलेशन जानने की कोशिश करते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस लाइक डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, सो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, स्टेटमेंट x एंड y आर इन सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, x और y दोनों चीजें सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। मतलब अगर x चेंज हो रहा है तो y भी वैसे ही चेंज होगा। मतलब x अगर इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज होगा, x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा। जैसे y भी जैसे इंक्रीज हो रहा है तो x भी इंक्रीज होगा। सो इस प्रकार से ये डायरेक्ट वेरिएशंस, डायरेक्ट इसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। समटाइम्स माय प्रोनाउंसिएशन में भी सम लाइक डायरेक्ट और डायरेक्ट, so it's fine. Uh, so we can call it as a direct or direct variation also. Okay, so let's come back to this problem where it has written that x and y are in direct variation. There is a direct variation. These are the different forms uh, how we can tell about this sentence, right? X and y are in same proportion, or x and y are in direct variation, or there is a direct variation between x and y. सो मैथमेटिकल सिंबल्स, ये जो अल्फा है वो हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल टू y। ओके, सो x proportional to y is written in the form of equation x is equal to ky, okay, where k is a constant. So ये proportional का अगर सिंबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डायरेक्टली वहाँ जो हमने कांस्टेंट लिया था वो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा हमें देखना है कि हमारा साइन जो है वो इक्वल टू होना चाहिए, राइट। सो इसका मतलब क्या कि ये बता देता है कि इनका वेरिएशन, जैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये बता देता है। लेकिन अगर उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, जैसे मतलब उनका एक्चुअल रिलेशन क्या है, राइट, तो उसके लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे x इज इक्वल टू के वाई। सो के क्या है, तो यहाँ कांस्टेंट है, जो हमने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में देखा कि 1/20 हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिला। सो इस प्रकार से हम इसे कांस्टेंट लेते हैं। सो x is equal to ky, so x by y is equal to k is the equation. So ये हम इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं। सो फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो है, दिस इज सिंबल फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। ओके, और इस x प्रोपोर्शनल टू y ये बताता है। ओके, सो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, इससे हमें पता चला कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। सो और इसे इक्वेशन फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू के वाई, जहाँ k ए कांस्टेंट होता है, और इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। मतलब उस वेरिएशन या प्रोपोर्शनल जो हमने प्रोपोर्शनलिटी देखी है तो उसका कैसे वैरी हो रहा है वो k से पता चलता है। सो let's see, observe how the following statements are written using the symbol of variation.
एरिया ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो हमें पता है कि एरिया, ओके, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज ए और its radius is equal to r, the above statement is written as a proportional to r square। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a जो एरिया है सर्कल का, वो तो हमें पता ही है कि एक सर्कल होता है तो उसका रेडियस r है, ओके, और जो एरिया है पूरा, I will clear it out. So suppose this is the सर्कल एंड उसका ये रेडियस है और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ओके। सो इनका प्रोपोर्शनलिटी सिंबल कैसे है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके। अगर मुझे इसे इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, ए इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, ओके। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द के हियर? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? सो यहाँ ए सर्कल का एरिया है और a is directly proportional to r square. So a is equal to k r square, right? Hello, can you hear me guys? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Okay, can you see my screen? Okay, that's great. So यहाँ हम देख रहे हैं कि a is directly proportional to r square. तो यहाँ a is equal to k r square. So k यहाँ क्या होगा? Can you write in the chat box? अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं के क्या होगा। Okay, someone has come up with the answer. That's great. So yes, that's right. So हमें पता है कि area of the circle is equal to a is equal to pi r square. So यहाँ pi क्या है? कांस्टेंट है, ओके। सो हम देख सकते हैं कि देर इज डायरेक्ट रिलेशन। अगर r इंक्रीज होता है, अगर रेडियस इंक्रीज होता है तो एरिया भी इंक्रीज होगा। ये हम देख सकते हैं। यहाँ भी विजुलाइज करना है किसी भी चीज को तो कैसे करते हैं, जैसे अभी आर है यहाँ, ओके। अगर मैं आर को बढ़ा देता हूँ तो मेरा सर्कल और बड़ा हो जाएगा, राइट, और एरिया भी बड़ा हो गया। सो इस प्रकार से अगर आर इंक्रीज करते हैं तो सर्कल का एरिया भी इंक्रीज होता है। सो दिस इज कॉल्ड example of direct variation. Uh, let's go to the next thing is pressure. Pressure of liquid varies directly as a depth of liquid. This statement is written as P proportional to D. So इसका मतलब क्या है कि हम एक बड़े वेसल या बड़े वेसल में पानी लेते हैं, ओके। लिक्विड माने हम कोई भी पानी ले सकते हैं, सॉरी कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, but we will go with water because water is readily available everywhere, okay। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ लिक्विड, ओके। सो ये लिक्विड यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये जितनी डेप्थ है, राइट, मतलब इसकी ऊंचाई, तो उस ऊंचाई से ये डी,
और प्रेशर यहाँ एक्सर्ट होता है ऐसे। ओके, सो आपको लगेगा अरे ये कितना सा प्रेशर है, बहुत ही कम है। तो आप वेसल की जगह एक बड़े बड़े डैम का सोचिए। तो ये एक समझिए कि एक डैम है। ओके, तो अगर इस ये पूरा डैम है प- बड़ा सा, तो यहाँ कितना पानी होगा। ओके, और उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। हमारे जो वेसल में या हम छोटे वाले पतीले में जितना लेते हैं उससे तो ये बहुत ही बड़ा होता है। और इसका जो प्रेशर होता है वो जैसे ही ये लेवल बढ़ती है, ओके, पानी का लेवल जैसे बढ़ेगा वैसे यहाँ जो प्रेशर होगा एट द बॉटम या वॉल पे, ये जो इनकी वॉल्स है, राइट, यहाँ वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। और वो हमेशा जैसे ही डेप्थ, मतलब ये जो लिक्विड का डेप्थ बढ़ते रहता है, लिक्विड का डेप्थ बोलिए या हाइट बोलिए, जो भी आप नाम रखना चाहिए, तो ये जैसे ही बढ़ते जाएगा वैसे प्रेशर भी बहुत बढ़ेगा। ओके, सो इनका रिलेशन क्या है? तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी बोला आपको कि जैसे ही डेप्थ बढ़ेगा, राइट, मतलब इट विल इंक्रीज, प्रेशर विल also increase. Similarly, if this depth, as depth is increasing, pressure on the wall or pressure at the bottom is increasing. So this is called example of direct variation. Okay, so यहाँ भी proportionality constant होता है, P is equal to KD, but yeah, it requires a lot of mathematics and all this stuff, but आप अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है इतना। आप जैसे इंजीनियरिंग या आप कोई डैम अगर डिजाइन करना चाहेंगे तो तब उस वक्त पे ये बहुत ही यूजफुल होगा, राइट। सो दिस आर द बेसिक फंडामेंटल्स। आपको अभी पता चल गया कि प्रेशर, जो वाटर का प्रेशर होता है, इट इंक्रीजेस अलोंग द डेप्थ और हाइट ऑफ द वाटर। सो अभी आपको पता है, तो आप आगे जाके अगर सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको इस मतलब आपने जो अभी डायरेक्ट वेरिएशन का पढ़ा है, तो इसके फॉर्मुलेशन होंगे और उसके अनुसार आप डैम वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो आपने वो सुना होगा कि मतलब इट्स वेरी historical event, maybe in 1980s or 1990s, there was a dam breakage. सो डैम में ब्रेक हो गया था। सो यही है कि पानी बारिश में बहुत बढ़ जाता है तो ये डैम ब्रेक होता है, जो वॉल्स होती है। ओके, बिकॉज प्रेशर इज मोर, और जो वॉल जो बनी रहती है वो उतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाती, तो इसके लिए बाढ़ आती है कभी कभी, मतलब डैम ब्रेकेज के कारण। ओके, बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ तो डैम के ऊपर से भी पानी चला जाता है, इसके कारण होती है। सो इस प्रकार से ये प्रेशर और लिक्विड का डेप्थ, इनका रिलेशन है, और ये को रिलेशन डायरेक्ट वेरिएशन है। सो लेट्स go to the next point. Okay, so x varies directly as y. Okay, okay. So x varies directly as y when x is equal to 5, y is equal to 30. Find the constant of variation. तो उन्होंने कहा है कि अभी एक सिंपल एग्जांपल दिया है जहां कहा है कि x अगर 5 है तो y is equal to 30 and they are in direct variation. So हमें पता है कि इक्वेशन इस प्रकार से लिखना है, x प्रोपोर्शनल टू y, और इसका इक्वेशन फॉर्मेट है x इज इक्वल टू ky. ओके, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और उन्होंने वैल्यूज दी हैं जैसे x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 30। तो अगर ये हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो x 5 k इज इक्वल टू k इंटू 30। सो k क्या बनता है? k इज इक्वल टू 1/6। सो इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज x इज इक्वल टू ky और x इज इक्वल टू y/6। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशंस वेयर वी नो द कांस्टेंट। ओके, सो और हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 6x। सो यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसका मतलब यह है कि ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में हैं और इनका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू 1/6। ओके, अगर हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे इसे, जैसे y इज इक्वल टू 6x, तो यहाँ इक्वेशन बनेगा y इज प्रोपोर्शनल टू x, और जहां उनका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा k इज इक्वल टू 6।
ओके, सो इट डिपेंड्स हम कैसे लिखना चाहेंगे, कैसा फॉर्मेट में है, और कौन सी वेरिएबल हमें y में रखना है और x में रखना है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ मैथमेटिक्स. मैं अभी उसको आपके सामने नहीं बताऊंगा, बट इट इज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बहुत सारी चीजें होती है कि y यहाँ होगा, मतलब y is should be independent variable, x should be dependent on y, then only we will make it y proportional to x. So यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं. So आप आगे जाके पढ़ेंगे इस मामले में. So सो उस कैसे डिसाइड करते हैं y कहाँ होगा और x कहाँ होगा. ओके, सो वो भी बहुत सारी पढ़ाई होती है. सो आप आगे जाके उसके बारे में पता करोगे. So let's see another example. Cost of groundnuts is directly proportional to its weight. If cost of 5 kg groundnuts is rupees 450, then find the cost of 1 quintal groundnuts. Okay, so 1 quintal is nothing but 100 kg. So let the cost of groundnuts be x. So हम यहाँ variable मानते हैं, जैसे cost of groundnuts is x and weight of groundnuts is y. It is given that x varies directly as y. तो यहाँ लिखा है कि जो प्राइस है, सॉरी, x यहाँ क्या है, कॉस्ट. सो कॉस्ट जो है वो वेट के अनुसार चेंज होती है. सो यहाँ देखा कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. सो यहाँ हमने क्या लिया है, कॉस्ट x और y इज वेट, राइट. सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखा है. क्या हम y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख सकते हैं यहाँ? तो इसका आंसर ऐसे है, जैसे वेट बढ़ेगा किसी भी चीज का, तो मतलब कॉस्ट, जैसे वेट ऑफ ग्राउंडनट्स बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी. ये स्टेटमेंट थोड़ा सा, मतलब हम खरीदने जाते हैं कुछ भी चीजें, तो वेट के अनुसार होती है, राइट. ना कि प्राइस बढ़ेगी तो उसका वेट बढ़ेगा, ऐसे हमेशा नहीं होता है, राइट. सो हमें यहाँ हमने इसलिए वेट चूज किया है एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और y चूज किया, सॉरी, x चूज किया है एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये हाउ टू सिलेक्ट दिस वेरिएबल्स ऑन विच साइड इट शुड बी, एक बड़ा मैथमेटिक्स होता है. तो ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप फंडामेंटल सीख रहे हैं, तो आप इस पे भी ध्यान रखिए कि ये किस प्रकार से x इज प्रोपोर्शनल टू y हम लिखते हैं, और उनका मैथमेटिक्स इक्वेशंस बनाते हैं, उसका कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कैसे चूज करते हैं, या कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखेंगे अभी. सो अभी देखा कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, सो x इज इक्वल टू ky. ओके, इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 450 और y इज इक्वल टू 5. ये उन्होंने दिया है कि 5 kg के ग्राउंड नट्स को प्राइस कितना है, कॉस्ट ₹450. सो x इज इक्वल टू ky. और हमें तो पता ही है ये इक्वेशन, x इज इक्वल टू ky. सो हम इसमें से वैल्यूज रख देंगे 450, 5k. सो हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पता चल जाएगा, k इज इक्वल टू 90. ओके, सो हम इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 90y. सो अभी इसमें अगर हम लोग को, उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंड नट्स. तो 1 क्विंटल ग्राउंड नट्स इज अराउंड 100 kg. सो हम 100 kg इस इक्वेशन में रख देंगे, तो उनका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 9000. सो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंड नट इज ₹9000. सो अभी हमको पता चल गया कि किस प्रकार से, अगर डायरेक्ट वेरिएशन हमें पता है, उसका हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पता कर लिया, फिर उसके उसके साथ हम लोग किसी भी चीज का आंसर निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 kg of groundnuts. Can you write it in chat box?
So 25 kg ground nuts की प्राइस क्या होगी? Can you write in the chat box? So 25 kg की प्राइस होगी 25 into constant of proportionality. And clear. So 25 into 90. 25,92250. Okay. So 25 kg ग्राउंड नट्स की प्राइस होगी 2250. सो अगर इसको अगर हम विजुलाइज करना चाहेंगे, राइट, सो आपने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा कि कैसे ग्राफ्स में लिखते हैं। तो यहाँ रखते हैं y, उसका मतलब है y माने क्या है यहाँ, y मतलब है वेट, राइट, और x है कॉस्ट। सो अगर हम लोग इसको यहाँ जो भी पॉइंट्स है उन्होंने और क्या कहा है 100 kg, और मैंने अभी 25 का आंसर निकाला, राइट। अगर ग्राफ पे लिखते हैं तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये कैसे डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन की लाइन हमेशा ऐसे ऊपर जाने वाली होगी। ओके, सो देखते हैं अभी आगे। इनडायरेक्ट वेरिएशन भी है। सो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही y की प्राइस y माने यहाँ वेट, वेट जैसे ही इंक्रीज हो रहा है तो x भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो अगर आगे जाके आपको 100 के आगे 1000 kg का भी प्राइस निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। So what it shows, what it indicates that weight as weight is increasing, weight of the groundnuts, cost for the groundnuts is also increasing. This is called classic examples of direct variation. So okay, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ, okay. So write the following statement using symbol of variation. So circumference of circle is directly proportional to radius. So C is proportional to R, right? So यहाँ constant of proportionality क्या होगा? C is equal to KR, right? So यहाँ constant of proportionality क्या होगा? Can you write in the chat box, please? So हम देख रहे हैं कि circumference of circle is directly proportional to radius R. So मैंने इस symbolic form में लिखा C is proportional to R. So C is equal to KR is in equation format. So K, what is meant by K here? So K की वैल्यू क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? सो दिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू, सो C is circumference here, R is the radius. So K, so K is nothing but 2 pi, right? So 2 pi 2 pi is the constant here. So constant of variation, yeah, constant of proportionality is here 2 pi. So 2 into 22 by 7.
so that is 44/7. That's correct. ओके, सो इस प्रकार से अगर हमें आर की वैल्यू दी जाए तो हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, और उनका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमेशा 44/7 या 2 पाए ये होगा. So let's see consumption of petrol L in the car and distance traveled by the car D are in direct variation. So ये अगर हम symbolic format में लिखना चाहेंगे तो कैसे होगा? L is proportional to D, right? So जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे उतना ही पेट्रोल कंज्यूम होगा. सो अगर हम 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम होगा. इसी प्रकार से हम लोग अगर 50 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो अब कंजम्पशन ज्यादा होगा. तो यहाँ मैं और एक चीज बताना चाहूंगा. आई नो इट्स वेरी एडवांस्ड फॉर यू गाइस, बट या आई एम जस्ट गिविंग यू ग्लिम्स so that you can think in that direction too. And it's always good to have the knowledge. So अब हम देख रहे हैं कि L is proportional to D, right? But अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा? L is equal to KD. So ये जो K है, राइट, सो वो K डिसाइड करने के लिए आपको पता ही है कि इट्स नॉट सो इजी हियर. जैसे डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, तो हमारा मतलब सपोज आपके पास कार है और कार में आप जा रहे हैं तो आप 30 किलोमीटर के बाद 1 लीटर कंज्यूम होगा, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर जाओगे तो 2 लीटर, मतलब टोटली 2 लीटर कंज्यूम होगा. सो आपने देखा होगा इट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? मींस इट्स राइट नाउ अब हम ये डायरेक्ट वेरिएशन देख रहे हैं. सो उसके लिए ठीक है, L इज इक्वल टू के टी. तो K जो वैल्यू है उसे निकालने के लिए, मतलब उसका वैल्यू निकालने के लिए देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? मतलब हर कार मैन्युफैक्चरर ट्राई करते हैं कि हाउ हाउ टू गेट दिस वैल्यूज. सो उसके पीछे बहुत सारा डेटा होता है, जैसे डी. सो आपकी कार कितनी चली डी, और आपका जो पेट्रोल टैंक है उसमें उसका लेवल कितना चेंज हुआ. तो इसके अनुसार बहुत सारे डेटास, उसे कहते हैं डेटा. सो वो बहुत सारा डेटा जमा होता है. सो बहुत सारे डेटा के बाद ये के वैल्यू निकालते हैं. ओके, और इसे कहते हैं, जैसे बहुत सारा, मतलब आप जैसे भी गाड़ी चला रहे हैं और ईच मे बी मीटर और ईच किलोमीटर दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एल, कितना कंज्यूम हो रहा है. तो इसे क्या कहते हैं कि बहुत सारा डेटा लेके उसके अनुसार उसका इवेल्युएट करना, इसे मशीन लर्निंग कहते हैं, जो आपने कभी सुना होगा ये वर्ड. आई डोंट नो हाउ मेनी गाइज have come across this term like machine learning. That is very that's very famous word nowadays, मशीन लर्निंग. तो उसमें ये इस प्रकार से यूज होता है, जैसे बहुत सारा डेटा होता है और हम वेरिएशन ही जो वेरिएशन कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वही हम लोग उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो वो थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हाउ दिस फंडामेंटल्स आर इम्पोर्टेंट. अगर आपको पता है अभी कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ये जो चीज़ें हैं, अगर ये फंडामेंटल क्लियर है तो आप आगे उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. So that's why I'm again repeating same stuff. Like please concentrate, and if you have any question about this, you can write in the chat box. So let's move ahead. So हमने देखा कि जैसे consumption of L कार का कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन द कार, एंड इनका प्रोपोर्शनलिटी सिंबल से मतलब सिंबॉलिक फॉर्मेट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. सो अभी देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, सो यहाँ हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ एप्पल, ओके, कॉस्ट ऑफ एप्पल is directly proportional to x. So y is equal to kx.
सो यहाँ y क्या है? हम अभी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे. सो हमें दो वैल्यू दी है यहाँ, तो कोई भी वैल्यू यहाँ ले लीजिए बिकॉज दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थिंग. सो अभी अभी हमने देखा कि अभी जैसे ये दो चीजें हैं, राइट? 18432, ये दो डेटा पॉइंट्स हैं. मतलब हमें अगर इसमें डाल देंगे जैसे y इज इक्वल टू के एक्स है, राइट? सो x अगर 1 है, k इंटू 1, y इज इक्वल टू 8. सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है? k इज इक्वल टू 8. सिमिलरली अगर हम इसके जगह 32, या मतलब ये जो दूसरा पॉइंट यूज करेंगे, 32 इज इक्वल टू k इंटू 4, यहाँ भी k इज इक्वल टू 8 होगा, राइट? सो यहाँ मतलब या फॉर दिस मैथमेटिक्स वी नो दैट k इज इक्वल टू 8. सो क्या होता है कभी कभी इन एक्चुअल रियल लाइफ कंडीशंस, ये इतना इजीली x मतलब जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसे फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारा डेटा गैदर करते हैं, और उसके अनुसार ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है वो फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो दैट इज अनदर मैथमेटिक्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. वही मैं आपको बता रहा था कि ऐसे बहुत सारे डेटाज यूज करते हैं और उसके अनुसार कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं. So let's see what is the cost of apple is around 56 rupees here. So what will be the number of apples? Can we find it out? Can you write in the chat box? Yeah, someone has already written that it is 7 or 8. So what should be the number of apples here? 7. Okay. और अगर number of apples 12 है तो cost of apple क्या होगी? 96. ओके, सो हमें तो पता है अभी कि y इज इक्वल टू के एक्स, और यहाँ k है इज इक्वल टू 8, राइट? सो अब नंबर ऑफ एप्पल्स जो फाइनल है, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द आंसर हियर? नंबर ऑफ एप्पल्स. दैट्स गुड. सो आंसर विल बी 20. Okay, so if we will see the problem number 3, if m is proportional to n and when m is equal to 154, n is equal to 7, find the value of m when n is 14. So इस प्रकार से प्रॉब्लम को क्या करना है कि m is proportional to n, तो हम इसे इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे m is equal to kn, राइट? सो उन्होंने एक वैल्यू दी है, जैसे m 154 है और k into 7. So what is the value of k? Okay, is that the right answer? K is equal to 22. If it is wrong, please write in the chat box. So we'll go ahead. So they have asked like find the value of m when n is equal to 14. So अभी हमें इक्वेशन पता है, जैसे m is equal to 22 into n, right? अगर n is equal to 14, okay, 22 into 14.
So what is the value of m? I will write it here. 308. Is this correct answer? Yes, I think so. So हमने देखा कि कैसे डायरेक्ट वेरिएशंस के फॉर्मुलेशन होते हैं। पहले सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिखते हैं, फिर उसे इक्वेशन फॉर्मेट में के साथ लिखते हैं, फिर कोई भी एक वैल्यू दी होती है उसके अनुसार हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो भी नाम कहिए आप, we will find it out the k, that is constant, and then we will, if we know the equation with the constant, then we can find out any values, right? So this is the general steps for direct variation. So I will not go through 4 and 5 because okay, I think 5 and 6 looks good, but yeah, but it's always same thing. I will give you the hint how to work on that. So y varies as a square root of x, right? So y varies as square root of x. So इसमें फिर से हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। y is equal to k root of x, ओके। सो फिर हम इसमें अगर ये वैल्यूज रख देंगे, जैसे y24 k into root of 16. Root of 16 is 4, 24. K is equal to 24 divided by 4. So it becomes k is equal to 6. Okay. So यहाँ आंसर है k is equal to 6. So हमने constant of variation यहाँ निकाला, which is k is equal to 6, and equation क्या होगा फिर? Y is equal to 6 into root of x. So इस प्रकार से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 प्रॉब्लम भी इजी है, सिर्फ आपको देखना है कि हाउ टू राइट इट डाउन इन symbolic format as well as equation format. Okay, I will not go through that. Let's try to move to the next thing. So उन्होंने यहाँ कुछ लिखा है, so let's recall. So following table shows the number of rows. I'm sorry. Excuse me. So the following table shows the number of rows and number of students in each row when they are made to stand for a drill. So यहाँ क्या है कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने स्टूडेंट्स है और कितनी रोज बनेगी, राइट? सो एक रो में अगर 40 स्टूडेंट्स है तो टोटल रोज बन रही है 6। अगर एक रो में, अभी हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ये रोज है और यहाँ 40 स्टूडेंट्स है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो ये टोटल कितनी बनेगी? 6। जैसे ये डेटा है। ओके, तो अगर ईच रो में स्टूडेंट्स कम कर दिए 10, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो गई? बढ़ गई। सो क्या हो गया इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज इंक्रीज, सो दैट इज 24। अगर number of student again they change to 24, then number of rows becomes 10. So इस प्रकार से number of students in each row is 12, then number of rows increases to 20, and number of students in each row decreases to 8, number of rows increases. So यहाँ आप देख सकते हैं कि
अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ रोज डिक्रीज होती है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। हम क्या करते हैं? Yes. So from table, we observe that product of students in each row and total number of rows in each pair is 240. तो अगर इनका प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 240, राइट? सेकेंड इसका भी अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 240, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा? 240। सो इस प्रकार से हर प्रोडक्ट का जो हर डेटा का जो प्रोडक्ट है यहाँ, तो वो होगा 240 which is constant, right? So this is something different, this is called inverse variation, okay? So यहाँ हम कह सकते हैं कि number of student in a row and number of rows are in inverse proportion. In pair of numbers, if the increase in one number causes decrease in other number, this is in same proportion, then the pair is called inverse variation. वही अभी तक हम देख रहे थे कि अगर एक संख्या या एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी वेरिएबल इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें क्या है, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, तो इसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। Okay, I will clear all the drawings. तो यहाँ हम अभी जैसे हमने डायरेक्ट वेरिएशन देखा, वैसे ही इनवर्स वेरिएशन भी, how to write it in the symbolic format or how to write it in the equations. So let's see quickly. Uh, inverse variation. So यहाँ देख सकते हैं कि x is inversely proportional to y, right? Can be also expressed as there is inverse variation between x and y. So हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं. So there are different ways to write this inverse variation statement. So if x and y are inverse variation, then x into y is constant. तो हम देख सकते हैं कि अगर x and y are inverse proportion में है, अगर उनका proportionality inverse है, तो x into y उनका product जो हमेशा होता है वो constant होता है. Assuming that constant to be k, we can easily solve the problems. So if x varies inversely as y, then x into y is constant. So हम इसे symbolic format में कैसे लिखते हैं? x proportional to 1 by y. ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में देखा कि हमने x प्रोपोर्शनल टू y लिखा था, बट यहाँ क्या है? x प्रोपोर्शनल टू 1 by y. सो यहाँ देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, if x is proportional to 1 by y, then x is equal to k by y. इसका ये हो गया इक्वेशंस के इस रूप में. तो यहाँ जो कांस्टेंट है वो है k. सो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू k. सो इसका मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा. सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. सो कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देख लेते हैं. If a varies inversely as b, then complete the following table. So a is equal to 6 and b is equal to 20, then product is 120. और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम देख सकते हैं कि अभी 12 है, a is equal to 12, then what will be the value of b? 10, right? कैसे आया है? So हमें पता है a into b is equal to 120. So a is equal to 12 and b अगर हमें पता नहीं है तो 120. So b is equal to 120 by 12. b is equal to 10. Okay. So अभी
Can we write down what will be the answer here and here? So what will be the B and what will be the product? Product तो हमें पता ही है 120 होगा. Can you write the value of B for this problem? What is the value of B here? 8. That's correct. Here value is 8. Very clear all the drawings. Okay. So यहाँ value होगी 8. So A into B always be product will be constant. So what will be value here for A? 30. That's correct. So इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि how values can be calculated. So एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे f is proportional to 1 by d square. ओके, सो यहाँ d is equal to 5 और f is 18 है. तो उन्होंने कहा है कि find out the find the d. If d is 10 then what is the f? So यहाँ हम symbolic format में लिखेंगे तो क्या होगा? f is proportional to 1 by d square और f into d square is equal to k. So यहाँ अगर सब वैल्यूज हम लोग d is equal to 5 और f is equal to 18 रख देंगे तो हमें कांस्टेंट क्या मिलेगा? कांस्टेंट इज 450. अगर हमें 450 पता है तो उसके अनुसार हम जो भी वैल्यूज पूछी गई है हम लोग लिख सकते हैं, राइट? सो दो प्रॉब्लम्स हैं तो देख सकते हैं कि जैसे f इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 450. सो हेंस d अगर 10 है तो f इज इक्वल टू 4.5. सिमिलरली अगर हम f इज इक्वल टू 50 लिखेंगे तो what is the value of d? So f into d square is equal to 450. So यहाँ हम f की वैल्यू रख देंगे 50. So d square is equal to f into 50 into d square is equal to 450. So d square becomes 9 because 450 divided by 50 and then 9, and we can take d is equal to 3 or d is equal to minus 3. So अभी इस प्रकार से हम values निकाल सकते हैं for the indirect variation. So before going further, I think there is practice set. Okay, so we will see next time how to solve the practice set 7.2. Till then, take care, and we will see you next time. Bye, and have a great evening. Thank you. Thank you very much.